Very good morning, guys. Once again, I welcome you all in my YouTube channel. So now, in the continuation of the lecture series, which I am uploading from few days, that is machine tool technology. So in the previous video, I explained the concept of generatrix and directrix. Means how to identify that which is the feed motion and which is the cutting motion, and what is the relative motion between these two motions. Because of the relative motion only the cutting is done. Okay. If only feed motion is going on, nothing will be done. If only cutting action is going on, nothing will be done. Okay. Both the action has to perform simultaneously. Then only the cutting action will be done. Okay. So now that all we have studied. So now in this lecture we will be dealing with the mechanics of basic machining operation. Very important part. Okay. 5 to 6 marks question came directly from this unit in GATE. Okay. And in semester exam also it is very important. So mechanics of basic machining operation. First of all, please note down this important conclusion that the mechanics of chip formation is same for all machining operation. Okay, for all machining operation the mechanics of chip formation is same. What are the basic machining operation? I have written some of the examples like drilling, boring, shaping, grinding, turning, etc. Okay, so now we will see some of the examples that why we can say that how we can say that mechanics of chip formation is same for all machining operation. Why this is so? Okay, let us keep your eyes on this board. So first of all, take the example of a grinding operation. So I have drawn this example of a this pictorial view of a grinding wheel. Okay, these are various abrasive materials came out of the grinding wheel, and this wheel is rotating, and your workpiece is kept over there, and the wheel is rotating and rubbing the workpiece and removing the chips and removing the metal in the form of chips. So this is basically a grinding operation. So if we zoom on this object and see that these are the cutting tools. Okay, in the grinding wheel, this one, all these are cutting tools. Okay, so now if this cutting tool came in contact with the workpiece, then this workpiece, it removes the workpiece from here like this. So this is the chip. Similarly, this tool also remove this much portion from the workpiece since it is rotating in this direction. Since it is rotating in this direction, तो ऐसा उखाड़ते हुए ले जाएगा वो, तो ये chip निकलेगा. So this is the chip formation. Okay. Similarly, in milling cutter also you see these are the cutting tools of a milling cutter. It is rotating. So since it is rotating, it is removing the material in the form of chip. See, from this portion, from this portion, from this portion also, isn't it? Likewise in turning operation, this is the workpiece. Previously it is like this. पहले ऐसा रहा होगा, ये कटिंग टूल आपका यहाँ रहा होगा, पहले ये कटिंग टूल रहा होगा, धीरे धीरे इधर आया. मैंने बताया था आपको एक्सियल फीड धीरे धीरे इस साइड आ रहा है, तो देखिए इतने पोर्शन को काट दिया उसने. इसका अगर ये वाला डायग्राम मैं देखूं तो ज्यादा क्लियर समझ में आएगा साइड व्यू से. देखिए ये छोटा वाला सर्कल है जो रिमूव हो गया, ये बड़ा सर्कल है, तो इतने पोर्शन को उसने चिप बना के निकाल दिया. देखिए लिख दिया मैं चिप. तो ये जो पोर्शन यहाँ रहा होगा पहले ऐसा जुड़ा होगा इससे, ये कटिंग टूल धीरे से उसको काट के निकाल दिया क्योंकि ये रोटेट हो रहा है और टूल वहां टिका हुआ है, तो इतने पोर्शन को निकाल दिया, चिप निकल गया. अब देखिए ये डायग्राम इससे थोड़ा अलग दिख रहा होगा आपको, वो बताऊंगा मैं क्यों ऐसा. ठीक है, ध्यान दीजिएगा. अभी इतना समझिए, यहाँ भी चिप निकला. अब ये शेपिंग ऑपरेशन देखिए, ऐसी टूल है, इसका मैं 3D भी बना दिया हूँ, थोड़ा और क्लियर समझ में आएगा बोल के. ये वर्कपीस है, पहला सिंपल रहा होगा नीचे ऐसा पूरा, धीरे धीरे जैसे ये घुसा तो इसको ऐसे उखाड़ते हुए निकाल दिया चिप बना के. ये क्लियर समझ में आ रहा है? तो ये आपका क्या होगा, शेपिंग ऑपरेशन हो गया. अब देखिए ये डायग्राम, मैं इसको अगर ये वाला पोर्शन, ये जो पोर्शन कट रहा है, ये जो पोर्शन कट रहा है, ये वाला पोर्शन जो कटा है, इसको अगर मैं जूम करके देखूं तो ऐसे ही दिख रहा है कुछ. ये पहले रहा होगा ऐसा जुड़ा हुआ और यहां से टूल घुसा तो ऐसा उखड़ गया, चिप बन के निकल गया. तो ये डायग्राम जो है ना, ये सबके लिए सेम रहेगा, इसलिए लिखा है मैकेनिक्स ऑफ चिप फॉर्मेशन इज सेम फॉर ऑल मशीनिंग ऑपरेशन. अब आज के बाद से यही डायग्राम आपको पूरे मैकेनिक्स में बनाना है. ओके, यही डायग्राम बनेगा चाहे कोई भी ऑपरेशन रहे. टर्निंग के लिए आपको थोड़ा अलग दिख रहा होगा, मैं यही बता दूंगा, ऐसे ही बनेगा वो, यही चीज है वो. कैसे अभी दिखाता हूं. ये बेसिकली आपको समझ में आया. इस पोर्शन को अगर आप देखोगे तो ऐसे ही दिख रहा है, केवल इतना पोर्शन देखोगे तो ऐसे ही दिख रहा है कि नहीं. यहां देखोगे तो ये, इसको अगर आप इस साइड से देख रहे हो फ्रंट व्यू से, यहां से अगर आप देखते हो 2D में तो क्या ऐसे ही दिखेगा कि नहीं दिखेगा. क्लियर है? अब यहां पे देखो टर्निंग है, ये भी यही चीज है. इसको अगर मैं ऐसा रोटेट कर दूं 90 डिग्री, इस डायग्राम को मैं ऐसा 90 डिग्री रोटेट कर दूं, तो रोटेट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये टूल ऊपर चला जाएगा कि नहीं. तो ये ऐसा बन गया आपका.
ये टूल हो गया, ये चिप बन के निकल गया। देखिए अब देखिए इसको बना हुआ ऐसे दिख रहा है कि दिख रहा है? तो ये 90 डिग्री घुमाना है टर्निंग को बस, और कोई अंतर नहीं। 90 डिग्री इस डायरेक्शन में घुमा दोगे तो भी ऐसे दिखे। तो मैं जो भी एनालिसिस करूंगा आपसे इस डायग्राम में करूंगा। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट है क्या किसी को? अभी तक ये जो मैंने यहां बताया आपको, ये बोर्ड में ये आप देख लीजिए कि सारे ऑपरेशन के लिए, चाहे कोई सा भी ऑपरेशन रहे, मैंने यहां एग्जांपल लिया चार, ग्राइंडिंग, मिलिंग, टर्निंग और शेपिंग, ये सभी में आपका ये डायग्राम कॉमन है। ये डायग्राम हर किसी में आपको ये डायग्राम को बनाना है। क्लियर है? अब आगे अपन इस डायग्राम को डिटेल में पढ़ेंगे। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूं, आप नोट कर लीजिए। ठीक है, नाउ आई एम रविंग दिस। ओके, तो देखिए ये आपका अब ये डायग्राम बना। ठीक है, अब आगे से ये डायग्राम आपके काम आने वाला है। तो ये जो पोर्शन है देखिए, ये पहले नीचे रहा होगा, अब ये काट के निकला, मतलब ये जो लाइन आपका दिख रहा है ये वाला, ये मशीन सरफेस हुआ कि नहीं? इतने पोर्शन का मशीनिंग होते हुए आया ना, तब तो चिप उखड़ गया। तो ये जो सरफेस है इसको मैं क्या बोलूंगा? इसको बोलूंगा मशीन्ड सरफेस या डिफॉर्म्ड सरफेस, है ना? डिफॉर्म्ड सरफेस, या क्या बोलूंगा इसको मैं? फिनिश्ड, फिनिशिंग हो गया ना, तो फिनिश्ड सरफेस ये भी बोल सकता हूं। लेकिन ये वाला पोर्शन ये अभी हुआ नहीं है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? इसको क्या बोलूंगा? अनडिफॉर्म्ड सरफेस, अनडिफॉर्म्ड या अनफिनिश्ड सरफेस, ये हो गया आपका। अब देखिए कटिंग टूल का जो साइड, ये वाला साइड है जो चिप के साथ कांटेक्ट में आ रहा है, इसको मैं बोलता हूं रेक सरफेस। इसको बोलता हूं मैं रेक सरफेस, या इसको फेस भी बोलते हैं, फेस ऑफ टूल। ओके, और ये जो पोर्शन है जो मशीन्ड सरफेस के पास है, इसको मैं बोलता हूं क्लियरेंस सरफेस, या और रिलीफ फेस भी बोलते हैं, रिलीफ फेस भी बोलते हैं। तो ये आपका रेक सरफेस हो गया, ये क्लियरेंस सरफेस हो गया। ठीक है, ये जो प्लेन बन रहा है यहां दिख रहा है आपको, ये अभी यहां 2D में एक लाइन दिख रहा है, लेकिन बेसिकली होगा बोर्ड के अंदर भी तो इसका थिकनेस होगा ना अंदर की तरफ, तो ये जो चीज होगा वो आपका क्या कहलाएगा? प्लेन होगा ना, पूरा एक लाइन तो नहीं है। तो ये जो प्लेन है ऐसा जो बोर्ड के अंदर पूरा बना होगा, इसमें इसको मैं क्या बोलूंगा? शियर प्लेन बोलूंगा। इसको क्या बोलूंगा? शियर प्लेन बोलूंगा। ठीक है, ये जो पोर्शन है इतना अभी कटना बचा है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा?
अनकट चिप थिकनेस, ये अनकट चिप थिकनेस हो, और ये T2 है, देखिए ये T2, ये थिकनेस में कैसे नापूंगा, रेक सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए। वो जो थिकनेस होगा चिप का वो क्या हो जाएगा, चिप थिकनेस कहलाएगा। क्या कहलाएगा ये, इसको अगर मैं ऊपर लिखता हूं यहां पे, तो ये क्या कहलाएगा, चिप थिकनेस। ओके, अभी ये चिप थिकनेस अलग क्यों हो गया, आप बोलोगे ये T1 है, यही तो कट के निकला, तो इसका थिकनेस और इसका थिकनेस अलग क्यों हो गया, ये सब एक्सप्लेन करूंगा। तो ये क्लियर है, अनकट चिप थिकनेस हो गया। ये अनडिफॉर्म्ड सरफेस है, ये डिफॉर्म्ड सरफेस है, ये रेक सरफेस है, क्लियरेंस सरफेस है। यहां तक क्लियर हो गया, ये शियर प्लेन है। ठीक, अब देखिए ये फाई, अल्फा और गामा क्या है, ये भी नोट कर लेते हैं एक बार। अब फाई जो है ये क्या क्या एंगल बना रहा है, शियर प्लेन जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रहा है ना, तो ये क्या कहलाएगा, शियर एंगल, ये कहलाएगा शियर एंगल। ओके, ये क्या कहलाएगा, शियर एंगल। देन अल्फा, अल्फा क्या है, जो टूल का जो रेक सरफेस है वो ये वर्टिकल के साथ जो एंगल बना रहा है। अगर आपने ऐसा बोल दिया तो गलत हो गया, वर्टिकल नहीं बोलेंगे इसको अपन बोलेंगे रिफरेंस प्लेन। ओके, ये रिफरेंस प्लेन आपका कई केस में हॉरिजॉन्टल होता है, कई केस में वर्टिकल भी होता है। ठीक है, तो अभी आप केवल ये ध्यान रखिए, ये रिफरेंस प्लेन। तो रेक सरफेस का एंगल रिफरेंस प्लेन के साथ जो बनेगा उसको मैं क्या बोलूंगा, रेक एंगल बोलूंगा। क्या बोलूंगा, रेक एंगल। अभी सब अपन डेफिनेशन जब लिखेंगे बाद में तो बताऊंगा ऐसा। और गामा, ये गामा क्या है, देखिए टूल का जो क्लियरेंस सरफेस है, ये क्लियरेंस फेस जो मशीन्ड सरफेस के साथ एंगल बना रहा है, ये क्या कहलाएगा मेरा, क्लियरेंस एंगल कहलाएगा, क्लियरेंस एंगल। तो इतना मैंने ये पूरा नोमेनक्लेचर कर दिया आपके लिए, क्लियर है, इसको आप नोट कर लीजिए भाई। देखिए सिंपल सा बात है, शियर प्लेन जो एंगल बना रहा है वो शियर एंगल होगा, रेक सरफेस जो एंगल बना रहा है रेक एंगल होगा, क्लियरेंस सरफेस जो एंगल बना रहा है वो क्लियरेंस एंगल होगा। ये सिंपल सा लॉजिक है। ठीक, तो ये आप जल्दी नोट करिए, इसके बाद मैं आगे बताऊंगा ये शियर प्लेन क्या होता है और चिप थिकनेस जो है अलग अलग क्यों होता है, जल्दी नोट करिए। ठीक, अब ऐसा ये फिगर रहने दे रहा हूं, नोमेनक्लेचर को रब कर रहा हूं। ठीक, अब देखिए ये मेरा वर्कपीस है, ऐसा फंसा होगा चक में। टर्निंग का अगर मैं एग्जांपल दूं तो ये क्या होगा, चक होगा लेथ का, ये वर्कपीस होगा और यहां पे मेरा कटिंग टूल होगा। ठीक है, कटिंग टूल होगा। तो अब देखिए एक चीज के ध्यान दीजिए कि ये कटिंग टूल जो जब काट रहा है तो ये शियर प्लेन के अलाउंग ही कट क्यों हो रहा है, इसका क्या कारण है, बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, ध्यान दीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा गेट में, और अगर गेट निकाल लिए तो इंटरव्यू में। ठीक है, तो ये आपको नॉलेज होना चाहिए। ये ध्यान दीजिए कि ये जो मेरा कटिंग टूल है ये भी टूल होल्डर में फंसा हुआ होगा, ये टूल होल्डर। तो ये जो टूल होल्डर है ये फिक्स है, वैसे इधर जो चक है वो भी फिक्स है, फिक्स होगा ये सब। तो अब देखिए ये अगर फिक्स है तो ये इधर से इसको धक्का मार रहा है कटिंग टूल, तो कटिंग टूल जो है, कटिंग टूल के कारण क्या है, जो आपका वर्क पीस है, वर्क पीस में इस साइड एक लोड फोर्स लग रहा है। ठीक, लेकिन ये वर्क पीस में इस साइड जब फोर्स दे रहा है तो वर्क पीस इधर खिसक पा रहा है क्या, ये चक तो फिक्स है, ये वर्क पीस को इधर खिसकने नहीं देगा, तो इसके कारण से क्या होगा, ये चक भी इधर एक फोर्स जनरेट कर देगा। तो कुल मिला के क्या है, देखिए ये वर्क पीस के अंदर एक कंप्रेसिव स्ट्रेस फील्ड जनरेट हो गया कि नहीं, इस वर्क पीस के अंदर एक कंप्रेसिव स्ट्रेस फील्ड ये जनरेट हो गया। ये टूल इधर से एक फोर्स लगा रहा है, चक उसका अपोज कर दे रहा है इधर से, तो कुल मिला के ये वर्क पीस में आपका एक कंप्रेसिव स्ट्रेस फील्ड जनरेट हो गया। अब मेरे भाइयों ये पता है अपन को, अपन ने मॉस में पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़े हो तो बिल्कुल पढ़िए जाकर के, बिना मॉस के सब्जेक्ट समझना मुश्किल है। ठीक है, मॉस का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। अपन ने मॉस में क्या पढ़ा है, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस पढ़ा है ना, मॉस में प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। तो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस से अपन को ये क्लियर है कि जो डक्टाइल मटेरियल होता है
डक्टाइल मटेरियल, ये जो डक्टाइल मटेरियल होता है ये क्या होता है, वीक इन शियर, किसमें वीक होता है ये, शियर में। और जो ब्रिटल मटेरियल होता है वो क्या होता है, वीक इन कंप्रेशन, ये पता है अपन को। अब चूंकि मैं यहां टर्निंग का एग्जांपल ले रहा हूं, जनरली हमारा जो भी वर्क पीस रहेगा और जो टूल रहेगा वो डक्टाइल मटेरियल का बना होगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो डे टू डे वर्क है उसमें हमको ब्रिटल मटेरियल का बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ता है। जो इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस के लिए ब्रिटल मटेरियल का बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ता है, हमको ऐसा चीज का जरूरत पड़ता है जो कैसा हो, डक्टाइल हो, मतलब जिसमें लॉन्गिविटी ज्यादा हो, मतलब टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छा हो उसका। डक्टाइल मटेरियल का टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत अच्छा रहता है, तो इससे क्या होगा, वो टफ बन जाएगा, आप उसको एलोंगेट करिए, टूटेगा नहीं। ठीक है, तो ये फिनोमेना चाहिए, तो मैं उसी का एग्जांपल ले रहा हूं। तो अब देखिए क्यों शियर प्लेन ऐसा बनता है। अब आपको प्रिंसिपल स्ट्रेस का चीज दिमाग में आना चाहिए तुरंत। क्या दिमाग में आना चाहिए कि भैया डक्टाइल मटेरियल जो है वो कभी भी कंप्रेशन में टेंशन में नहीं टूटता है, वो किसमें टूटता है, शियर में, और नहीं कंप्रेशन में टूटता है, किसमें टूटता है वो, शियर में। शियर में भी होता है डक्टाइल मटेरियल। अगर मान लो ये ब्रिटल मटेरियल का होता तो जैसे ही यहां कंप्रेसिव स्ट्रेस फील्ड जनरेट हुआ यहां से टूट जाता, जैसा अपन देखे होगा ना घर में ग्लास ईटा ऐसा जुड़ा है, मान लो ग्लास है कि नहीं, ये ऐसा जुड़ा है आपका ग्लास, यहां से टूट जाएगा, तो टूटेगा तो वो सरफेस देखिए एकदम सिंपल होगा ऐसा। तो ये आपका ब्रिटल फ्रैक्चर है। ये कब होगा, जब मटेरियल ब्रिटल होगा। क्यों? क्योंकि वो कंप्रेशन में वीक होता है, जैसे ही कंप्रेसिव लोड लगा वो क्रैक हो गया, तड़प जाएगा। लेकिन ये ऐसा नहीं होगा, नहीं तो क्या होता है, यहां से टूट जाता है, नहीं होगा ऐसा। क्यों? क्योंकि डक्टाइल मटेरियल है। अब डक्टाइल मटेरियल जो है वो टेंशन में या कंप्रेशन में वीक नहीं होता, वो किसमें वीक होता है, शियर में। तो अब ध्यान दीजिएगा, हमको पता है कि शियर फोर्स मैक्सिमम कौन से प्लेन में लगता है। आप पढ़ोगे प्रिंसिपल स्ट्रेस में डेरिवेशन, टाउ मैक्स कब आता है, जब आपका थीटा का वैल्यू कितना रहता है, 45 डिग्री रहता है, याद है, थीटा का वैल्यू कितना रहता है, 45 डिग्री। तभी आपको ध्यान देना है इधर, जब अपन मॉस पढ़े हैं, मॉस स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम पढ़े थे ना, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम क्या होता है, ऐसा टूटता है, तो जहां पे अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस आता है, पहले क्या होता है, ये ऐसा आपका शाफ्ट है, एक बार है, फिर धीरे से क्या होता है, हल्का सा ऐसा पतला होता है, फिर ये पतला जो हो रहा है इस जगह बढ़ता जाता है, तो जहां ये नेकिंग वाला पोर्शन आता है, यहां पे क्या होता है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ वाला पोर्शन जहां आता है, वहां पे क्या होता है, ऐसा नेक फॉर्म हो जाता है, और जैसे ही नेक फॉर्म होता है ये टूट जाता है। डक्टाइल मटेरियल ऐसा टूटता है, सब पढ़े हो मॉस में सब। तो ये जो टूटता है, ये जो प्लेन बन रहे हैं ना, ये वाला प्लेन, इसी प्लेन के अराउंड टूट रहा है, और ये प्लेन का एंगल कितना है, 45 डिग्री। ये अपन प्रूव कर चुके हैं मॉस का प्रिंसिपल स्ट्रेस में टाउ मैक्स कब होता है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, जब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री होती है। ये कॉन्सेप्ट यहां काम में आ रहा है मेरे भाइयों। तब क्या हो रहा है, ये जगह जो है, अब यहां जैसे ही टूल घुस रहा है तो क्या हो रहा है, यहां तो कंप्रेसिव फील्ड है, लेकिन तड़क नहीं रहा है, वो क्या कर रहा है, इस जगह से उखड़ जा रहा है। तो इस जगह से क्यों उखड़ रहा है, क्योंकि ये एंगल कितना बना रहा है आपका, 45 डिग्री। तो इस पर्टिकुलर जगह में शियर स्ट्रेस जो क्या है, मैक्सिमम है। जैसे शियर स्ट्रेस मैक्सिमम होगा वो टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि डक्टाइल मटेरियल किसमें वीक होता है, शियर में। तो जहां उसको शियर स्ट्रेस ज्यादा मिलेगा, भले कंप्रेसिव स्ट्रेस कितना भी हो, लेकिन वो टूटेगा नहीं। जैसे ही शियर स्ट्रेस मिलेगा वहां से वो टूटना चालू होगा। तो ये जो प्लेन है, इस प्लेन में उसको क्या मिल जा रहा है, शियर स्ट्रेस मैक्सिमम मिल जा रहा है। आपको पता है थीटा 45 डिग्री, ये वाला डायग्राम से भी थीटा 45 डिग्री। तो जहां ये वाला प्लेन मिला वहां वो टूट जाएगा। तो जैसे ही टूटेगा कैसे, वो यहां से निकलना चालू हो जाएगा, इस जगह से ऐसा उखड़ना चालू हो जाएगा जैसे शियर प्लेन मिले। ठीक, तो अब कैसे उखड़ेगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट फिनोमेना है। इसको आप कैसे याद रख सकते हो, ताश का पत्ता रहता है अपने पास, सबके घर में होगा। तो ताश के पत्ते को ऐसा आप रखे हो, मान लो एक के ऊपर एक, और ऊपर से अगर उसमें लोड लगा रहे हो ऊपर वाले को, तो क्या होगा, धीरे धीरे ऐसा ढहेगा, वो ऐसा ढहेगा कि नहीं, एक के ऊपर एक स्लाइड करेगा, एक के ऊपर एक स्लाइड करेगा, एक लेयर ताश का दूसरे लेयर के ऊपर स्लाइड करते हुए खिसकेगा, ऐसे खिसकेगा। यही सेम फिनोमेना है, इस वाला प्लेन के ऊपर एक के ऊपर एक खिसकना चालू करेगा। ये वाला जो आपका प्लेन है, ये वाला प्लेन, ये शियर प्लेन है, इस शियर प्लेन के ऊपर एक के ऊपर एक खिसकना चालू होगा। तो ये वाला कॉन्सेप्ट यहां लग रहा है, समझ में आया, शियर का। ठीक, तो क्या होगा, पहले ये वाला जो सरफेस है, अब ये जो आपका अनकट पोर्शन है, ये पूरा आपका क्या है, ये पूरा आपका अनकट पोर्शन है, ये शियर प्लेन है और कुछ नहीं। तो अब जैसा टूल यहां पे है पहले, तो इसको काटा तो ये शियर प्लेन हो गया। इसके बाद जब ये उखड़ गया, टूल आपका यहां आया, तो जब टूल यहां आया तो ये शियर प्लेन हो गया, फिर ये उखड़ गया, टूल यहां आया, ये शियर प्लेन हो गया। क्लियर? तो ऐसे क्या हो रहा है, ये सभी शियर प्लेन है, तो ये सब एक के ऊपर एक स्लाइड करेगा। अब जैसे ये शियर प्लेन है, टूल यहां पे है, क्लियर, तो इसके नीचे वाला ये प्लेन ऐसा है और ये ऊपर वाला है,
तो टूल यहां जैसे इसको धक्का मारेगा क्या पहले ऊपर खिसकेगा, डायरेक्ट इधर इस ये जो आपका कटिंग टूल है इस सरफेस में चिप डायरेक्ट बन के फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। पहले क्या होगा, ये कटिंग फोर्स के कारण एक ये वाला जो प्लेन है यहां पे एक शियर फोर्स लगेगा, क्या लगेगा, शियर फोर्स। तो ये जो शियर फोर्स है क्या करेगा, इसको ऊपर खींच देगा, ये ऊपर खींच के फिर पलटेगा अपने इधर। इसलिए अपन जो टूल बनाते हैं कटिंग टूल उसमें रेक सरफेस देते हैं, ये वाला सरफेस। तो ये सरफेस के ऊपर टूल क्या करता है, फ्लो करता है। क्यों, क्योंकि ये शियर फोर्स के कारण क्या होगा, ऊपर खिसकेगा फिर नीचे गिरता है, तो नीचे गिरेगा तो क्या होगा, टूल को वियर कर सकता है, इसलिए टूल में अपन रेक सरफेस देते हैं, तो चिप उसके ऊपर गिरेगा फिर गिर के फ्लो हो जाएगा। क्लियर, ये कॉन्सेप्ट होता है आपका क्यों चिप बन के निकल रहा है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो चिप बनने का कारण क्या है, बिकॉज ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। वी नो दैट for ductile materials it is weak in shear and the shear force is maximum at a plane along 45 degree inclination, ये अपन को पता है। उसके कारण क्या हो रहा है, इस पर्टिकुलर जगह से ऐसा बन के निकल जाएगा। समझ में आया, देखिए आपको दिख रहा होगा 45 डिग्री के आसपास ये वाला प्लेन, और कैसे निकल रहा है, जैसा ताश का पत्ता एक के ऊपर एक बिखरता है ना, स्लाइड करता है, ऐसे स्लाइड करके निकलेगा और चिप बन के ऊपर चला जाएगा। क्लियर, समझ में आ रही है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाइयों, ये श्योर आएगा एग्जाम में क्वेश्चन, ठीक। ये या तो आपके रिटर्न एग्जाम में आया तो ठीक, नहीं आया तो इंटरव्यू पूछता है, ठीक। और अगर आपने ये आंसर नहीं दिया तो आपका इंप्रेशन नहीं पड़ेगा, आपको इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए, तभी आप इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो, ठीक है। नोट कर लीजिए जल्दी इसको। ठीक, मैं इसको मिटा रहा हूं। तो अब देखिए यहां अपन ने बाकी सारे डायमेंशन तो देख लिया, इस वाले फिगर में थिकनेस वगैरह सब दिख जा रहा है, ठीक। लेकिन अब यहां पे 3D व्यू बनाता हूं, एक दो डायमेंशन और है जो अपने को पता होना चाहिए, तो इसका एक 3D व्यू बना लेते हैं, वो भी देख लेते हैं। अब देखिए ये था क्या, T1 था, और ये मेरा क्या है, विड्थ। ये डायमेंशन आपको नहीं दिख रहा था, और ये जो है यहां से आता है क्या, लेंथ। तो ये W है, ये क्या है, विड्थ ऑफ कट। जैसे ये डेप्थ कितना अंदर घुसा है, तो ये क्या है, विड्थ या चिप बोल दो, विड्थ ऑफ चिप। और ये L क्या है, लेंथ ऑफ चिप, ओके। ये L क्या है, लेंथ ऑफ चिप। तो अब देखिए ये आपका दिख रहा है शेयर प्लेन। अब यहां देखिए ये सब शेयर प्लेन है, जब टूल आगे आते जाएगा तो ये शेयर प्लेन, अभी ये शेयर प्लेन है क्योंकि टूल यहां पे होगा आपका, ऐसा टूल होगा, ठीक। तो देखिए ध्यान से, अब ये प्लेन है ना, इस प्लेन के अलाउंग सरकेगा वो, ऐसे जैसे ये है, तो यहां पे क्या हो रहा है, एक शियर फोर्स लग रहा है। तो ये क्या करेगा, जैसे टूल यहां आएगा ये शियर फोर्स इस प्लेन को ऊपर खींचता रहेगा, ऊपर खींचने के बाद वो नीचे गिरेगा यहां, फिर चिप बन के फ्लो करेगा। क्लियर, तो पहले शियर फोर्स एक्ट होगा, समझ आ रहा है। और इस टूल का एक वेलोसिटी होगा, इसको मैं कटिंग वेलोसिटी बोलूंगा, और ये यहां पे भी एक वेलोसिटी होगा, इसको मैं शियर वेलोसिटी बोलूंगा। जिस वेलोसिटी से शियर फोर्स चिप को ऊपर उठा रहा है वो शियर वेलोसिटी, और जिस वेलोसिटी से चिप आपके टूल सरफेस के ऊपर फ्लो करते हुए आगे बढ़ जा रहा है, इसको मैं क्या बोलूंगा, चिप वेलोसिटी। कटिंग वेलोसिटी को v से डिनोट करते हैं, ये क्या है मेरा, कटिंग वेलोसिटी, ये क्या है मेरा, चिप वेलोसिटी, और ये vs क्या है, शियर वेलोसिटी, ओके। तो ये तीन वेलोसिटी एक्ट करेगा। तो ये मेरा विड्थ ऑफ कट हो गया। देखिए ये जितना को होगा ऊपर भी उतना ही होगा ना, तो चाहे विड्थ ऑफ कट बोल लो या विड्थ ऑफ चिप बोल लो, यही होगा।
तो अब चिप का विड्थ अगर ये अंदर तरफ है तो डेफिनेटली ये वाला पोर्शन जो होगा, ये वाला जो पोर्शन होगा, ये क्या देगा मेरे को, चिप का थिकनेस देगा। तो ये अनकट चिप थिकनेस है, ये चिप थिकनेस है, ये विड्थ ऑफ चिप है, ये लेंथ ऑफ चिप। क्लियर? तो ये सारा आपका डायमेंशंस है। तो मेरे ख्याल से इतना आपको समझ में आ गया होगा अभी तक कि क्या मैकेनिक्स है, क्यों आपका ये जो शियर प्लेन है इसके अलोंग फ्लो होता है, चिप इसके अलोंग क्यों कटता है, क्या कारण है कि इस वाले प्लेन के अलोंग आपका कटिंग हो रहा है। तो इस वाले प्लेन के अलोंग कटिंग होने का कारण क्या है, ये मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा। ठीक, बिकॉज ऑफ शियर प्लेन। तो शियर प्लेन कहां मैक्सिमम होता है, शियर फोर्स वहां मैक्सिमम होता है शियर प्लेन में, और वो कब होता है, जब एंगल आपका 45 डिग्री होता है। क्लियर? और चूंकि हमारा जो मटेरियल है डक्टाइल है, तो डक्टाइल इज वीक इन शियर, इसलिए वहां से वो चिप बन के निकल जाता है। क्लियर है? तो ये मैकेनिक्स ऑफ चिप फॉर्मेशन है, इसको अपन आगे अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो यहां तक मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा गाइस। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।